Morning to all of you students. Today's topic is subgroup and related examples and theorems. So what is a subgroup? Let G under binary operation star be a group. A non-empty set H of this group G is said to be a subgroup of G if H under this binary operation star is also a group. So this means H is basically the subset of this group. So the trivial subgroups are the group itself and the identity element, and similarly the proper subgroups are any subgroup of G other than the group itself and the identity element is called the proper subgroup of G. So first example is that let C star denote the group of all non-zero complex numbers. We have to show that this is basically the subgroup. We can say this is the subset of this group. Then S is equal to Z in this group, that is C star, such that mod Z is equal to 1 is a subgroup of C star. So basically C star is the group of all non-zero complex numbers. Now we have to show that this S is also a subgroup of this group C star. So for this we have to solve, first of all we have to show all the properties of group. We have to satisfy all the properties of group, that is the closure property, associative property, existence of identity and inverse. So first of all we will show that this set S is non-empty. So सबसे पहले हमने S को non-empty show करना है, तो उसके लिए मैं directly लिख सकती हूँ since one belongs to this set, that is C star, and this implies that mod of 1 this is equal to 1. So therefore जो 1 होगा this belongs to this set S. So this shows that set S is non-empty. So that is S is non-empty subset of C star. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये शो किया कि जो एलिमेंट 1 है वो किसको बिलोंग कर रहा है, दिस ग्रुप सी स्टार को, और इधर से हमने ये शो कर दिया कि जो ये एस है, सेट एस है, दिस इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ दिस ग्रुप सी स्टार. सो अब हमने ग्रुप्स की प्रॉपर्टी शो करनी है, तो मीन सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे. सो हम इसमें पहले दो एलिमेंट्स ले लेंगे. सो लेट Z1 एंड Z2 जो दो एलिमेंट्स है ये बिलोंग कर रहे हैं सेट एस को. So be any two elements. This implies mod of Z1 this is equal to 1, and similarly mod of Z2 this is equal to 1. So now mod of Z1 into Z2 this is equal to mod of Z1 into mod of Z2, or directly we will write mod of Z1 is equal to 1 and mod of Z2 is equal to 1. So 1 into 1 this is equal to 1. So this implies that Z1 Z2 belongs to set S. So therefore the closure property holds in S. The closure property holds in S. So second is the associative property, because this property also holds in this set. So we will write here the associative law holds in S, since it holds in C star. सो मीन्स अगर जो एसोसिएटिव लॉ है वो अगर ग्रुप जो हमने नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर्स का ग्रुप जो जिसको हमने सी स्टार से डिनोट किया था, अगर वो उसमें एग्जिस्ट करता है तो मीन्स वो उसके सबसेट में भी एग्जिस्ट करेगा, तो मीन्स वो इस सेट एस में भी बिलोंग करेगा. एंड जो ये एस है दिस इज बेसिकली द सबसेट ऑफ दिस सेट सी स्टार. So now next is the identity, that is existence of identity. So for this I will write since 1 into Z this is equal to Z and this is also equal to Z into 1. So for all Z belongs to C star. So in particular we can write,
So in particular we can write that 1 into z, this is equal to z, and this is equal to z into 1 for all z belongs to S. So therefore 1 is the identity element of S. सो मीन्स अगर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सी स्टार में एग्जिस्ट कर रही है तो मीन्स वो उसके सबसेट में भी एग्जिस्ट करेगी. सो नेक्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए शो करेंगे. सो सिंस आई विल टेक द एलिमेंट, सो सिंस फॉर एवरी जेड इन सेट एस, दिस इम्प्लाइज ये एलिमेंट जो z है ये c स्टार को भी बिलोंग करेगा. सो z बिलोंग्स टू c स्टार. सो देयर एग्जिस्ट z डैश. z डैश इज बेसिकली द इनवर्स ऑफ दिस z एंड दिस बिलोंग्स टू c स्टार सच दैट हम यहाँ पे इनवर्स की डेफिनेशन लगाएंगे, दैट इज z इंटू z स्टार, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है 1 है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू z डैश इंटू z. सो बट we can write mod of z into z dash, this is equal to mod 1, and this is also equal to mod of z dash into z. So this implies mod of z, ये mod को यहाँ पे ओपन करेंगे, mod of z into mod z dash, this is equal to 1 and this is equal to mod z dash into mod z. So अब जो mod z था वो किसके इक्वल था? We know that mod z is equal to 1 as per the statement of this set S. So यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1 into mod z dash, this is equal to 1 and this is also equal to mod z dash and this is equal to into 1. So यहाँ से हमारे पास क्या इक्वालिटी आ जाएगी, that 1 into mod z dash, or we can write directly mod z dash, this is equal to 1. So this implies z dash belongs to set S. So therefore for every z in S, there exists z dash in S such that z into z dash, this is equal to 1, and this is also true for z dash into z. So therefore inverse of every element of S exists in S. Therefore inverse of every element of S exists in S. So therefore S यहाँ से क्या बन गया, this is a group under multiplication. So I will write here. So therefore S is a group under multiplication. Hence S is a subgroup of C star. सो मीन्स ये प्रॉपर्टी सारी शो कर गया एक ग्रुप की, तो यहाँ से ये शो हो गया कि जो S है, सेट S है, वो हमारे पास क्या हो गया, दैट इज ए सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप C स्टार. Hence solved. Next is the theorem. A non-empty subset H of a group G is its subgroup if and only if AB belongs to H. For all AB belongs to H and similarly A belongs to H implies A inverse belongs to H. So हमें अब ये दो पार्ट शो करने हैं कि नॉन एम्प्टी सबसेट, जैसे हमने कोई, ये हमारे पास कोई ग्रुप है और इसके अंदर हमने एक सबसेट ले लिया एंड दिस इज H, और हमें ये शो करना है कि ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट H है ऑफ दिस ग्रुप G, ये सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. सो सेम हम यहाँ पे इसको नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट्स को लेके प्रूव कर सकते हैं. सो डायरेक्टली आई विल राइट हियर नेसेसरी पार्ट. सो हम सपोज करेंगे दैट ए नॉन एम्प्टी सेट H, सपोज दैट ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G
is a subgroup, is its subgroup. सो अगर ये इसका सब ग्रुप है, सो therefore H itself क्या फॉर्म करेगा, एक ग्रुप फॉर्म करेगा. सो therefore H itself forms a group. सो अगर H itself ग्रुप फॉर्म कर गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये दो कंडीशन है ये क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी बाय द डेफिनेशन. सो द कंडीशंस first and second holds in subset H by the definition of the group, of a group. So हम sufficient part प्रूव करते हैं. So suppose that H is a non-empty subset of a group G such that the conditions first and second hold. Hold in this subset H. So first of all पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो मीन्स वो भी एग्जिस्ट करेगी. सो आई विल राइट द क्लोजर प्रॉपर्टी and the existence of inverse holds in H. So now let two elements, let A and B and C, this belongs to H क्योंकि मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर रही हूँ. सो सेम क्लोजर प्रॉपर्टी और जो इनवर्स प्रॉपर्टी है वो अगर एज पर इन दो कंडीशन से ही होल्ड हो गई, सो ये दो पार्ट को प्रूव करने की नीड नहीं है. सो अब हम पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए शो करेंगे. सो 3 एलिमेंट्स मैंने इस सेट में ले लिए हैं. सो दिस इम्प्लाइज कि ये एलिमेंट्स ग्रुप को भी बिलोंग करेंगे, जो मेन ग्रुप था, दैट इज दिस बिलोंग्स टू G ऑल्सो. So therefore A B into C, this is equal to A B into C. So for all A B C belongs to this group, and we can write here G is a group. सो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो एसोसिएटिव लॉ है वो किसमें होल्ड कर रहा है, इस सबसेट H में. सो देयरफॉर द एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन H. नेक्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. सो अब एग्जिस्टेंस के लिए हम लिखेंगे सिंस हमारे पास जो H है वो क्या है, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G. सो देयर एग्जिस्ट an element A belongs to H. So therefore by condition second we have A inverse also belongs to this group, that is to this subset, that is H. So therefore A into A inverse, this also belongs to H. Now we have A into A inverse, this belongs to H from first. So this implies that A into A inverse is basically the identity, and this belongs to this set, that is this subset H. So where E is the identity element of G. So this implies that the existence of identity in H. The existence of identity in H. So therefore H itself is a group.
So thus H is a subgroup of group G. Hence solved. So simply हमने क्या शो करना था, यहाँ पे हमारे पास गिवन था कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट H है ग्रुप G का, और हमें ये शो करना था ये क्या है, ये सब ग्रुप है इफ एंड ओनली ये दो कंडीशंस क्या करेंगे, सेटिस्फाई होंगी. सो सबसे पहले हमने नेसेसरी पार्ट लिया और हमने ये लिया कि सपोज किया कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट H है ऑफ ए ग्रुप G वो क्या है, सब ग्रुप है. सो अगर वो सब ग्रुप है तो मीन्स वो ये दो कंडीशंस को क्या करेगा, होल्ड करेगा बाई डेफिनेशन. सो सफिशिएंट पार्ट में हमने ये लेके चले कि सपोज दैट H हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप G का, सच दैट ये जो कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कर रही है, होल्ड इन H. सो अब हमने क्या शो किया कि जो है H है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है. ग्रुप के लिए हमने इसकी 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी. सो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, और जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है वो एज पर दीज टू कंडीशंस यहीं से क्लियर हो गई. अब हमारे पास जो आती थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो भी इसमें होल्ड करेगी, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वो भी उसमें होल्ड कर गया. सो दिस मीन जो सबसेट H था वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है. तो मीन्स अगर वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो मीन्स वो क्या बन गया, एक सब ग्रुप बन गया. सो यही चीज हमें यहाँ पे शो करनी थी. Next theorem is that the intersection of two subgroups of a group is again a subgroup of that group. So हमें ये शो करना है कि इंटरसेक्शन अगर हम कोई दो सब ग्रुप्स का लेंगे वो अगेन क्या फॉर्म करेगा, सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप. सो सबसे पहले हम यहाँ पे दो सब ग्रुप्स ले लेते हैं. सो हम राइट डाउन लेट H and K be two सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप G. So therefore H and जो K है they are the subsets of group G. So this implies उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी किसको कंटेन करेगा, इस ग्रुप G को करेगा. So अब हम एलिमेंट्स लेंगे इसके इंटरसेक्शन में. So now let X comma Y belongs to H intersection K. So this implies therefore X comma Y belongs to H and intersection की जगह पे and आ जाएगा and X comma Y belongs to K. So this implies X into Y inverse belongs to H and similarly X into Y inverse belongs to K. Since H and K are both subgroups of group G, so means उनका जो इनवर्स भी है वो भी इसको बिलोंग करेगा. सो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं XY इनवर्स दिस बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K. सो देयरफॉर XY इनवर्स बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K for all X comma Y belongs to H intersection K. So this shows that H intersection K is a subgroup of G. Hence proved. Next example is show that the union of two subgroups of a group may not be a subgroup of that a group. So हमें ये शो करना है कि union of two subgroups जो होगा किसी ग्रुप का that may not be a subgroup of that group. So for example हमारे पास यहाँ पे हम पहले यहाँ पे दो subgroups ले लेते हैं. तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ let us consider let G be the group of integers under addition, that is Z under addition. So means यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मैं एडिशन ले रही हूँ. So consider two subgroups. So let H1 this is equal to 3Z
where this is also equal to, we can write 3n means 3z is the set which contains these elements, that is 3n, where n belongs to set of integers. So means जब n 1 होगा तो ये set कैसा होगा, h1 is equal to, जब n 1 हो जाएगा तो ये आपके पास 3 आएगा, जब n 2 हो जाएगा तो ये 6 बनेगा, फिर then next term will be 9 and so on. Similarly हम एक और ग्रुप ले लेते हैं, for example h2, और h2 में हमारे पास कैसे एलिमेंट्स होंगे, 2z and such that 2n and where n belongs to integer. So ये इस तरीके का सेट हम ले रहे हैं, मीन्स दो सब ग्रुप्स ले रहे हैं. सो सेम H2 में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जब n 1 होगा ये 2 हो जाएगा, n 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, देन 3 होगा तो इट विल बी 6 एंड सो ऑन. सो ये हमारे पास दो सब ग्रुप्स आ गए. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनकी क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो एलिमेंट्स ले लेती हूँ. सो आई विल राइट हियर लेट x, y बिलोंग्स टू दिस ग्रुप H1. सो यहाँ पे जो x जो एलिमेंट्स होंगे वो भी किस टाइप से होंगे, वो भी हमारे पास किस टाइप के होंगे, 3n टाइप के एलिमेंट्स होंगे. सो आई विल राइट हियर वेयर so yeah, since x is equal to 3n1 and y is equal to 3n2 for some n1 and n2 belongs to set of integers. So इन दोनों का अगर हम subtraction देखेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, x minus y, this is equal to 3 times n1 minus 3 times n2 and this is equal to 3 times n1 minus n2. So again ये हमारे पास किस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे 3 into z टाइप के एलिमेंट्स. So सेम आप लिख सकते हैं. So this belongs to 3z for some or directly I will write 3z since n1 and n2 belongs to set of integers. So this implies n1 minus n2 also belongs to the set of integers. So यहाँ से क्या शो हो गया कि जो ये h1 है that is a subgroup of group G. सो जैसे ये सब ग्रुप हमारे पास ग्रुप G का बन गया, सेम हम H2 के लिए भी शो कर सकते हैं. तो मैं डायरेक्टली लिखूंगी H2 इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G. सो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास सब ग्रुप आएगा. सो अब हमें बेसिकली प्रूव क्या करना है कि जो इसका यूनियन है ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G मे नॉट बी द सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप. So I will take let capital H, this is equal to H1 union H2. So means capital H को मैंने लिखा H1 union H2 के इक्वल. So means इसमें अब मैं कोई दो एलिमेंट्स ले लेती हूँ. मान के चलें H1 से मैं एक एलिमेंट ले लेती हूँ 3, इसी तरीके से H2 से मैं एक एलिमेंट ले लेती हूँ 2. So मैं यहाँ पे लिख देती हूँ since 3 is equal to 3 into 1 and this belongs to H1 and similarly 2 is equal to 2 into 1 means n जब 1 था, so this also belongs to H2. So therefore अगर 3 और 2 H1 3 H1 को belong कर रहा है, 2 H2 को belong कर रहा है, this means 3 और 2 जो है वो H को भी belong करेगा because H किसके इक्वल है, H1 union H2 के इक्वल है. सो अब यहां से हम देखते हैं एलिमेंट, जैसे मैं ले लेती हूँ एलिमेंट, इन दोनों का एडिशन मीन्स इनकी क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेती हूँ. दैट इज 3 + 2. जो 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5, बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू बोथ H1, डज नॉट बिलोंग्स टू बोथ H1 एंड H2. सो मीन्स ये जो 5 है, अगर आप यहां से देखेंगे ग्रुप में, ना इस H1 के ग्रुप में 5 एग्जिस्ट करेगा, ना इस H2 के ग्रुप में 5 एग्जिस्ट करेगा. सो मीन्स यहां से क्या आ गया कि जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो फेल हो गई है. सो अगर 3 + 2 इज इक्वल टू 5 डज नॉट बिलोंग्स टू H1 एंड H2, दिस इंप्लाइज दैट 3 + 2 इक्वल टू 5 डज नॉट बिलोंग्स टू H बिकॉज H किसके इक्वल था, H1 यूनियन H2 के इक्वल. सो यहां से क्या आ गया कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है दैट fails. So I will write therefore the closure property does not hold in H, hence H is not a subgroup
H is not a group, so means ये ग्रुप नहीं बना. अगर ये ग्रुप नहीं होगा तो उसका मतलब ये हो गया ये सब ग्रुप भी नहीं है. एंड हेंस नॉट अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G. सो हेंस प्रूव्ड. सो इस तरीके से आपने एग्जाम्पल सॉल्व करने. सो बहुत सिंपल एग्जाम्पल थी ये. थैंक यू.